مودی سرکار جنونی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے. قابض فوج کی فائرنگ سے شہید کشمیریوں کی تعداد 17 ہو گئی. زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینس پر بھی پتھر پھینکے گئے. بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کرے. ایسے اقدامات کشمیریوں کو ان کے حق کے خود ارادیت کے مطالبے سے روک نہیں سکتے. پاکستان کا رد عمل. بھارت ظلم سے کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتا. میروائز عمر فاروق کی دنیا نیوز سے گفتگو. مشال ملک کہتی ہیں کل سے حریت رہنما یاسین ملک کا کچھ پتہ نہیں, رابطہ بھی نہیں ہو رہا. جیسا لگتا ہے جیسے خالی ہو گیا ہمارا. یتیم بن گئے ہم لوگ, جیسے باپ کا سایہ اٹھ گیا سر سے. ہر گھر میں ماں باپ اپنے اولاد سے کتنا پیار کرتے, ہم نے شاید اس سے بھی کئی درجہ ہم نے ان سے محبت پایا. ابھی تو بہت دکھ ہو رہا ہے نا, ابھی ابو ہی نہیں ہے. زمانے کے ٹھکرائے لوگوں کو اپنانے والے ایدھی صاحب کا خلا کوئی پر نہیں کر سکے گا. ایدھی سینٹر میں خواتین کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم, اے ہم نفس ہو کھا گئے ہم. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. پیکر انسانیت فخر پاکستان لاوارثوں کے وارث عبدالستار ایدھی کا سوئم. کراچی کی میمن مسجد اور میٹھا در میں ایدھی ہوم میں قرآن خوانی. اسلام آباد, لاہور اور کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں دعائیہ تقاری. والد صاحب نے کہا تھا میرا جسم بھی میڈیکل کالج کو دے دینا تاکہ بچے سیکھ سکیں, مشن کو آگے بڑھاؤں گا. فیصل ایدھی کی میڈیا سے گفتگو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کراچی میں عبدالستار ایدھی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی. اپنے صوبے میں ایدھی فاؤنڈیشن کو جگہ دینے کا اعلان. دیگر رہنماؤں کی بھی آمد. خورشید شاہ کہتے ہیں ایدھی صاحب نے ثابت کیا بڑا آدمی پیسے سے نہیں عمل سے بنتا ہے. ایدھی صاحب نے رنگ و نسل سے بالا تل ہو کر پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کی. ان کی زندگی سب کے لیے مثال اور قابل تقلید ہے. لندن کے میئر صادق خان کا انٹرویو. وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں ملاقات. وزیر اعظم آج کا دن خاندان کے افراد کے ساتھ گزار رہے ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن پر حقائق سامنے لائیں گے. پاناما لیکس کا معاملہ ساتھ لے کر چلیں گے. طاہر القادری لاہور سے راولپنڈی چلے گئے, شیخ رشید سے ملیں گے. عید کے بعد پاناما لیکس کا ہنگامہ سر اٹھانے لگا. حکومت نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا اشارہ دے دیا. پرویز رشید کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے. بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے مودی سرکار کی جنونیت کی. مودی سرکار جنونی سرکار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینسز بھی پتھر پھینکے. نئی ویڈیو نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. قابض بھارتی فوج کی فائرنگ, شہید کشمیریوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے. بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے. اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ. مقبوضہ کشمیر میں نوجوان حریت پسند کمانڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. قابض بھارتی فوج نے برہان وانی کی شہادت پر احتجاج کرنے والے نہتے کشمیریوں پر گولیاں برسا دیں. کٹ پتلی حکومت نے وادی کے مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا. مظاہروں کو محدود رکھنے کے لیے قابض حکام نے انٹرنیٹ کی سہولیات بھی معطل کر دیں, جبکہ کالجز اور یونیورسٹیز میں امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں. چیئرمین آف آل پارٹیز کانفرنس سید علی گیلانی, میروائز عمر فاروق, یاسین ملک نے مشترکہ طور پر 2 روزہ ہڑتال کی کال دی ہے. حریت رہنماؤں کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا ہے.
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारतीय फौज की फायरिंग से अब तक 17 कश्मीरी नौजवान शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान चाक के रहनुमा अल्ताफ भट्ट साहब से। अल्ताफ भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि भारतीय फौज ने एक बार फिर जुल्म का बाजार गर्म कर दिया है, आखिर ये जुल्म की रात खत्म कब होगी? शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जो कल हमारे 2 दिन पहले एक सिंबल जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के वहाँ बन चुके थे, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी, इनके एक भाई 1 साल पहले भी शहीद हो चुके थे जिनका नाम खालिद मुज़फ़्फ़र वानी था। ये दरअसल ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, इनके वहाँ पे तहरीक आज़ादी के हवाले से एक अलामत बन चुके थे। और जहाँ तक जुल्म का ताल्लुक़ है, ये अब 7 दिहाइयाँ गुज़र रही हैं, गुज़र चुकी है, और ये जुल्म सितम का सिलसिला हिंदुस्तानी फोर्सेस के हाथों वहाँ पे जारी व सारी है। दरअसल बात वही है कि हम अपना हक की खुद इरादियत की बात करते हैं, जिसका हक हमें यूनाइटेड नेशन ने दिया है। हिंदुस्तान के साबिक़ा वज़राए आज़म ने खुद इसकी तस्दीक की है, श्रीनगर में की है, यूनाइटेड नेशन में की है, दिल्ली में की है। और इसी हक को मांगते हुए ये बुरहान जो वहाँ पे उभर के आया है, और ये हिंदुस्तान का एक धोखा था। हिंदुस्तान समझ रहा था कि शायद हम वहाँ पे तहरीक आज़ादी कश्मीर को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन 2008 और 2010 और आज जब बुरहान वहाँ पे शहीद हुआ है, उनके जितने भी इदारे हैं वो हिल चुके हैं। और वहाँ पे इस वक्त पूरी वादी कश्मीर, बल्कि मैं कहूँगा पूरा जम्मू व कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, गली गली, कोचे कोचे, लोलाब का आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल में इंडियन फोर्सेस, जालिम फोर्सेस दाखिल हो गए, और वहाँ पे जो पेशेंट्स थे सूरत हाल पर आलमी बरादरी खामोश है। आलमी बरादरी की खामोशी पर आप क्या कहेंगे? आलमी बरादरी से हम हमेशा, तो यही हमारा उनसे शिकवा रहा है, यूनाइटेड नेशन से रहा है। जो भी आलमी सतह पे इंसाफ की बात करते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये जो दोहरा मियार उन्होंने कायम किया है, यहाँ अगर मुसलमानों की बात है, आखिर क्या वजह है कि वो खामोश है? इस तैमूर का मामला हो या किसी और जगह का मामला हो, हम आज इस मौके पर उनसे फिर एक दफ़ा अपील करते हैं कि वो अपना फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहाँ भेजे और वहाँ पर देखे कश्मीरी क्या चाहते हैं। वो अपना हक मांगते हैं, हक के अलावा कोई चीज़ नहीं मांगते हैं। कश्मीरीयों को अपना हक दिया जाए। ये जो वहाँ पे जुल्म बर्बरियत को उनका हक दिया जाए, यकीनी तौर पर यही मुतालबा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने 17 निहत्ते शहरियों को अबदी नींद सुला दिया है। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी भारतीय फौज पत्थर बरसाती रही। हुर्रियत रहनुमा कहते हैं कि भारत जुल्म से कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकता, जबकि मिशेल मलिक के मुताबिक कश्मीर में शुहदा की तादाद 17 से भी ज्यादा हो सकती है। भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों को दूसरे रोज भी फायरिंग का निशाना बनाया। समाजी मीडिया पर वायरल होती वीडियो में भारतीय फौज को एम्बुलेंस पर पत्थर मारते देखा जा सकता है। भारतीय फौज के इस जुल्म सितम पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर में शोहदा की तादाद 17 से कहीं ज्यादा हो सकती है। जख्मियों को अस्पतालों में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स यहाँ पे आ नहीं रही हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सारा इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया है, फोन लाइन तो उन्होंने बंद कर दिए हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इससे कहीं ज्यादा कैजुअल्टीज हैं, और हॉस्पिटल्स में जो कि इंजर्ड लोग जा रहे हैं, जो कि 500 से क्रॉस कर गए, उनकी फैमिलीज को भी मारा पीटा जा रहा है इंडियन फोर्सेस की तरफ से, और जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में उनको भी मारा जा रहा है, जो जख्मी आ रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि भारत जुल्म से कश्मीरी नौजवानों की आवाज दबा नहीं सकता। गुज़श्ता रोज नौजवान को सीने और सरों पर गोलियां मारी गईं। कश्मीर का मसला जो है वो दरअसल एक सियासी मसला है, एक इंसानी मसला है, लेकिन भारत न सिर्फ इसको तस्लीम करने से इनकार कर रहा है, बल्कि बार बार कश्मीर के मसले को या तो इंतजामी कहता है या तो इक्तिसादी कहता है, और जवानों के हवाले से ये कहा जाता है कि इनको मुराद दिए जाएंगे, जबकि यहाँ के जवानों और यहाँ के लोगों की एक ही एक डिमांड है, एक मांग है, वो ये है कि भाई कश्मीर का मसला यहाँ के आवाम की राय और मर्जी के मुताबिक हल होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद कमांडर बुरहान वानी की शहादत के बाद से भारतीय फौज का निहत्ते कश्मीरियों को निशाना बनाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है।
मकबूजा कश्मीर में कशीदगी बरकरार है और निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। अल्ताफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्ताफ भट्ट साहब, भारतीय फोर्सेस की जानिब से मुसलसल फायरिंग की जा रही है और कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। कश्मीरी फौज की या हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या लग रही है? देखिए, स्ट्रेटजी उनकी रोजावल से यही थी कि हम जुल्म बरबरियत के ज़रिए मकबूजा कश्मीर में रहने वाले अवाम जो है उनका ये जो हक खुद इरादत की जो हम बात कर रहे हैं और जो डिमांड कर रहे हैं इसको दबाया जाए। लेकिन उन्होंने आज तक पिछले 25 साल में ख़ास तौर पे जितने भी हरबे इस्तेमाल किए वो सारे नाकाम हो चुके हैं। 1990 को आप ले लें, फिर 2008 को ले लें, जब श्राइन बोर्ड का वाक़ा वहाँ पर पेश आया है, उन्होंने कोशिश की है कि वहाँ की उस शिनाख्त को तब्दील किया जाए। इसी तरह वहाँ पर लोगों के सैलाब जो है सड़कों पे उमड़ आए हैं। 2010 की बात करें जिसमें उन्होंने 120 नौजवान बच्चों को, मासूम बच्चों को शहीद किया। उसके बावजूद मकबूजा कश्मीर में रहने वाले अवाम, पूरी जम्मू कश्मीर के लोग इस बात पे कायम और दायम है कि हमें अपना बुनियादी हक मिलना चाहिए। आज जो आप वहाँ पे देख रहे हैं, बुरहान के जनाजे में 2.5 से 3 लाख लोगों के एक सैलाब ने वहाँ पे उनके जनाजे में शिरकत की है। एक इत्तला के मुताबिक उनके अपने आबाई इलाके में 40 से ज़्यादा जगहों पर गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया। आपने सुना होगा सईद अली गिलानी ने पहली दफ़ा मकबूजा कश्मीर के किसी शहीद के लिए तमाम हुर्रियत क़यादत ने अपील की है पाकिस्तानी अवाम से, आज़ाद कश्मीर के अवाम से, बरतानिया और अमरीका में रहने वाले कश्मीरियों से कि वो इन शहदा के लिए गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम करें इनकी शहादत पे। और जनाजे में एक बड़ी तादाद में शिरकत की और इस जनाजे में इतनी बड़ी तादाद के पहुंचने का मकसद भी यही है कि किसी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और ये सफ़र जारी रहेगा। हमारे साथ अल्ताफ भट्ट साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अल्ताफ भट्ट साहब। ये तो हुई कश्मीर की बात। दूसरी जानिब भारत इस्लाम दुश्मनी में भी पेश है। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ भारतीय मीडिया जहर उगलने लगा है। सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक हैशटैग मुहिम शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश ने डॉक्टर जाकिर के चैनल पर पाबंदी लगा दी है। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया गया है हालिया होने वाले ये हमले जो कि बांग्लादेश में हुए और इन हमलों की आड़ में इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ एक बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई है। आजाद कश्मीर के इलाके हवेली में सियासी ग्रुपों के दरमियान कशीदगी, मुश्तिल अफराद ने कई दुकानें जला दी हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर ने नोटिस ले लिया है। डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आजाद कश्मीर से हम खबर शामिल कर रहे हैं आजाद कश्मीर का इलाका हवेली कि जहां पर सियासी ग्रुपों के दरमियान कशीदगी हुई और मुश्तिल अफराद ने कई दुकानें जला दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर ने इस तमाम तर वाक़े का नोटिस ले लिया है और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी हवाले से मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे खुरम परवेज से। खुरम परवेज, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि वाकई आज़ाद कश्मीर का ये इलाका है हवेली और हवेली का इलाका है गुगदार, जहां पर मुश्तिल मुजाहिरीन जो हैं उन्होंने 35 के करीब दुकानें जो हैं वो इस वक्त तक जला दी हैं। इस वक्त पुलिस की जो है भारी नफरी दीगर इजला से आज़ाद कश्मीर के हवेली में पहुंच चुकी है। हमारी बात हुई है एसपी हवेली सरदार यासीन बेग से। उनका कहना है कि 350 के करीब पुलिस एहलकारान जो हैं वो बाहर से मंगवाकर हमने यहाँ पर तैनात कर दिए हैं और हमारी ये कोशिश है कि हालात को कंट्रोल में लाया जाए। इस वाक़े का फौरी तौर पर मुस्तफा मुगल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस ले लिया है और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कोटा को हिदायत जारी की हैं कि वो फौरी तौर पर इस वाक़े की जो रिपोर्ट है वो उन्हें भेजें। और उनका ये कहना है, मुस्तफा मुगल का ये कहना है कि वो ज़ाब्ता अखलाक पर जो है वो अमल दरामद फौरी तौर पर करवाएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खुरम परवेज। अहम खबर आपको दें कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात और ऐसे में बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो मंगल को वतन वापस आएंगे, इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे और इस्लामाबाद में अहम पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातों के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं और इसी दौरान ये बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो मंगल को वतन वापस आएंगे, इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि इस्लामाबाद में अहम पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर भी मुशावरत होगी।
जमाने ने ठुकरा दिया, ईदी साहब ने अपनाया, अब्बू नहीं रहे, लगता है दुनिया अंधेर हो गई। बाप का साया सर से उठ गया। ईदी सेंटर कराची में खवातीन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिर्फ कराची की ही ये सूरत हाल नहीं बल्कि मुल्क भर में ईदी सेंटर्स में जहां पर बच्चे मौजूद हैं, वो लावारिस यतीम बच्चे के जिनको कोई अपनाने के लिए तैयार ना था, वो कि जिनके अपने उनसे दूर हो गए, उनको ईदी साहब ने पाला, उनको बड़ा किया, उनके सर पर शफकत का हाथ रखा। और ऐसे में आज जब ईदी साहब हमारे बीच नहीं हैं तो जमाना उनको याद कर रहा है। कराची चलते हैं, मीठा दर से हमें ज्वाइन कर रही हैं वजीहा बतूल, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। वजीहा, कहिएगा क्या मनाजिर देख रही हैं आप ईदी होम मीठा दर में ईदी साहब की रिहाइश गाह पर? जी बिल्कुल, देखें आज अब्दुल सत्तार ईदी का सोयम मनाया जा रहा है, आज उनका सोयम है। दुनिया बहुत, अगर मैं पाकिस्तान की बात तो ना करूं बल्कि पूरी दुनिया की बात करूं तो दुनिया में जहां जहां भी लोग उनके मद्द हैं, सारे के सारे चाहने वाले बहुत ज़्यादा शोक में। क्या मैं देख रही हूँ ये तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मीठा दर एक ऐसा इलाका है जो शहर से थोड़ा सा दूर है, शहर में ही लगता है। यहाँ पर जो मीठा दर है वो सदर के इलाके में लगता है, लेकिन सबसे अहम बात ये कि इतनी दूर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मलीर से, लांडी से और भी बहुत ऐसी जगहें, कोरंगी से, औरंगी से, ऐसे इलाके जो बहुत ज़्यादा दूर हैं ये इससे मीठा दर से। लेकिन इसके बावजूद अब्दुल सत्तार ईदी की सोयम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इनके लिए साल सवाब के लिए कुरान खानी की जा रही है। बच्चे बड़े सभी जो हैं, ख़वातीन मर्द हजरात सारे के सारे यहाँ पे कुरान खानी कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़े उनके साल सवाब के लिए। सबसे अहम बात ये उबैद के मैंने यहाँ पर देखा छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद अपना नाम भी नहीं पता हो, अपना नाम भी नहीं लेना आता हो, लेकिन उनके हाथ में भी तस्बीहें हैं, वो भी उनके लिए दुआएँ कर रहे हैं ईदी साहब के लिए कि उनको सवाब मिले, उनके साल सवाब के लिए। यहाँ पे उनके लिए उनके हाथ में तस्बीहें और दुआएं करना। अच्छा खैर, यहाँ पे ये भी बताऊँ कि सुबह से ही यहाँ पे एक जमे गफ़ीर देखने को आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अंदर जाके इन ख़वातीन और बच्चों के साथ आप लोग को भी दिखाऊं कि किस तरह ये लोग कुरान खानी करें, किस तरह ये लोग दुआएं मांग रहे हैं उनके साथ इस साल सवाब के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा रश है कि मैं अंदर नहीं जा पाई। बार है कराची मीठा दर से वजीहा बतूल हमें अपडेट कर रही हैं। वजीहा, बहुत शुक्रिया। ईदी साहब ने पूरी जिंदगी दुखी इंसानियत के लिए वक्फ की और जाते जाते भी दूसरों की दुनिया रोशन कर गए। फैसल ईदी कहते हैं कि वालिद ने कहा था कि उनका जिस्म भी मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। ऐसा ना करने पर वालिद साहब से माजरत चाहता हूं। ईदी साहब दुखी इंसानियत के पैकर थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सादगी में गुजार दी। अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ फिक्र थी तो दूसरों की। वो जाते जाते भी दूसरों की दुनिया रोशन कर गए। ईदी साहब का कहना था कि उनका जिस्म भी मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए ताकि बच्चे सीख सकें। ऐसा न करने पर वालिद साहब से माजरत चाहता हूँ। मरने से पहले भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे हिदायत की कि मेरे जिस्म का कोई भी आज़ा अगर किसी के काम आ जाए तो दे देना। तो एक आंखें थी जो दे सकते थे हम, और ये यहाँ तक भी इन्होंने कहा था कि मेरे जिस्म को भी जो है वो किसी मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, भले बच्चे जो है वो मेरे जिस्म से सीखें और इन जिंदा इंसानों की जो है वो मदद कर सकें। फैसल ईदी ने कहा कि वालिद साहब ने इस कारवां को आगे ले जाने की हिदायत की, उनके मिशन को जारी रखूंगा। मुझे जो है वो खासकर हिदायत दी है कि इस कारवां को लेके चलना है। हमेशा मेरा नाम लेते और मुझे जो है वो कहते कि आप जो है वो ये काम करेंगे, और मैं उनकी इस बात पे जो है वो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और ताकत दे कि मैं जो है वो इस इदारे को और इस खिदमत इन खिदमत को और उन लोगों का साथ दे सकूँ जिनका ईदी साहब देते रहे हैं। आमीन। और मैं उन मजलूम तबकात के लिए काम कर सकूँ जिनको हमेशा जो है वो नजरअंदाज किया जाता है। ईदी साहब ने बिला तफरीक दुखी और नादार लोगों की खिदमत की। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन से मजहब का है, कौन सी नस्ल का है, बस सबके गमों का बोझ उठाते रहे और पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। वज़ीर आला KP समेत मुतादिद शख्सियात ने अब्दुल सत्तार ईदी की कब्र पर हाजिर होकर फातिहा खानी की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ताहा उबैदी से। ताहा उबैदी, बताइएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात फातिहा खानी के लिए पहुंची यहाँ?
جی بالکل، انسانی خدمت کے ذریعے عبدالستار عیدھی نے بہت سی یادیں چھوڑی ہیں، لیکن اب جو ہے عقیدت مند لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں عبدالستار عیدھی کے مزار پر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک بھی یہاں پر پہنچے تھے، ان کے ہمراہ ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بھی موجود تھے، جنہوں نے یہاں اس اظہار کیا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ عبدالستار عیدھی کے نام سے وہاں جامعات بھی منسوب کرے گی، اور اس کے علاوہ عیدھی فاؤنڈیشن کو اگر زمین کی ضرورت پڑی تو وہ بھی حکومت فراہم کرے گی۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ایئر وائس مارشل بھی یہاں پر پہنچے تھے، جنہوں نے ان کے مشن کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ابھی بھی لوگوں کی بڑی تعداد، اگر آپ میرے عقب میں دیکھیں، لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ رہی ہے، اور یہاں پر فاتحہ خوانی بھی کی جا رہی ہے، پھولوں کی چادر بھی چڑھائی جا رہی ہے، اور جو عبدالستار عیدھی نے جس مشن کا آغاز کیا تھا اس کو جاری رکھنے کا بھی یہاں پر عزم کیا جا رہا ہے۔ عبدالستار عیدھی کے پوتے اور نواسے بھی یہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ مختلف سیاسی اور سماجی جو شخصیات ہیں ان کی بھی آمد کا سلسلہ مزار پر جاری ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ طاہر عبیدی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں عیدی ہوم میں میٹھا در کے مقام پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہنچے ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے کراچی عیدی ولیج میں عبدالستار عیدھی کی قبر پر پھول بھی چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی۔ اس وقت وہ میٹھا در پہنچے ہیں، یہاں پر اہل خانہ سے تعزیت کریں گے۔ میٹھا در میں آج فاتح خوانی کا انتظام کیا گیا ہے، سوئم کا یہاں پر انتظام کیا گیا ہے، اور اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک پہنچے ہیں، جہاں پر اہل خانہ سے تعزیت کریں گے۔ فیصل عیدھی سے ملاقات کریں گے، اہل خانہ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی اس وقت پہنچے ہیں میٹھا در، جہاں پر تعزیت کریں گے عبدالستار عیدھی کے انتقال پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ درانی کہتی ہیں کہ عبدالستار عیدھی کا فلسفہ حقوق العباد تھا، انہوں نے قوم کو عاجزی سکھائی۔ انہوں نے کہا کہ عیدھی صاحب نے دوسروں کے لیے بھیک مانگی، بھیک مشن آگے بڑھانے کے لیے فیصل عیدھی کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ عیدھی صاحب کی بھیک مشن، وہ بھیک مشن میں فیصل کے ساتھ، ویسے بھی میں عیدھی صاحب کے ساتھ ہوں، ٹی ڈی ایف بھی عیدھی صاحب کے ساتھ ہے، انہی کے نقش قدم پہ انہی کی فلسفی پھیلانی ہے میں نے، میرا کام یہی ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ قابل سمجھ لے کہ قبول کر لے، لیکن فیصل عیدھی اور عیدھی صاحب کی بھیک مشن، جس میں بہت بڑا فلسفہ ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا، یہ بھیک مشن میں فیصل کے ساتھ ہر جگہ جہاں وہ بھیک مانگے گا ساتھ میں بھیک مانگوں گی۔ اس لیے بھیک سے ایک تو عیدھی صاحب نے ہمیں سکھایا ہے، وہ عاجزی آتی ہے کہ آپ کبھی بھولتے نہیں ہو کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ جاتی عمرہ میں وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے والد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا ہے، اور اس ظہرانے میں وزیر اعظم نواز شریف، ان کی والدہ شمیم اختر، بیگم کلثوم نواز بھی شریک ہیں، جبکہ شہباز شریف، ان کی اہلیہ حمزہ شہباز، سلمان شہباز، یوسف عباس اور اسحاق ڈار بھی شریک ہیں۔ اسی سے متعلق مزید جان لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انصاری سے۔ لیاقت، کہیے گا اور کون کون سے اہم لوگ موجود ہیں ظہرانے میں؟ جی، وزیر اعظم نواز شریف کی کل لندن سے وطن واپسی کے بعد یقیناً شریف فیملی کے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے، اور آج تمام شریف فیملی جو ہے جاتی عمرہ میں رائیونڈ میں جو ہے نواز شریف کی رہائش گاہ پر جمع ہے۔ یہاں پر مریم نواز کی طرف سے خصوصی طور پر اس خوشی کے موقع پر، اس صحت یابی کے موقع پر جو ہے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور شریف فیملی کے جو دوسرے ممبرز ہیں اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے ہیں اس میں، اور یہاں پر اس وقت ظہرانے کی تقریب جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ظہرانے سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پر پہنچے اور وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، اور تمام سیاسی صورتحال سے اور جو ملکی صورتحال ہے اس پر ان کو آگاہ کیا کہ ان کے 48 روز جو ملک سے وہ باہر ہے، اس دوران کیا کیا اپڈیٹس ہوئیں، اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے اور حکومت کی کیا تیاری ہے، اس حوالے سے تمام صورتحال سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے۔ اور اس وقت یہ ظہرانے کی تقریب جو ہے وہ جاری ہے، جس میں شریف فیملی کے ممبرز جو ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ان کے بڑے جو نواز شریف تھے لندن گئے، وہاں پر علاج ہوا، اور 48 دن وہ زیر علاج رہنے کے بعد وطن واپس پہنچے، تو شریف فیملی میں خوشی کی انتہا ہے، اور تمام ممبرز آج یہاں پر اپنی خوشیوں میں ایک دوسرے کو شریک کیے ہوئے ہیں۔ شریف خاندان خوشیاں منا رہا ہے، ایسے میں جاتی عمرہ میں وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے والد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا ہے۔ لیاقت انصاری اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔